homosexuality, I don't know. They are. नहीं, इतना खास नहीं जानता उनके बारे में। बाहर से आया है वो सब, यहाँ का नहीं है। यहाँ संस्कृति है अपनी। यहाँ औरत भी नहीं, मर्द भी नहीं है। एबनॉर्मल, वो गलत है ना। जो लेडीज जेंट्स करते हैं उसका नहीं होने चाहिए, गलत है। अपने नयन से नीर बहाए, अपनी जमुना खुद आप ही बनावे। अपने नयन से नीर बहाए, अपनी जमुना खुद आप ही बनावे। समाज की निगाहों में तो मुझे लोग लड़का ही मानते हैं, लेकिन मैं अपने आप को एक कोती मानता हूँ। मेरी जो फीलिंग है वो एक लड़कियों की तरह है, एक लड़की की तरह सोचना, एक लड़की की तरह बात करना, एक लड़की की तरह बिहेव करना। जब समाज के बीच में जाता हूँ तो बहुत मुश्किल होती है अपने आप को प्रेजेंट कर पाना, क्योंकि समाज में जो समलैंगिकता है उसको अपनाया नहीं गया है। लोग तरह तरह के कमेंट्स पास करते हैं इस चीज़ को लेके। लोगों को मालूम है आई एम ए बायोसेक्सुअल, और कुछ लोगों को ये भी लगता है इज नॉट नाइस थिंग। पिया तो कैसा अभिमान तोरा, पिया तोरा तोरा। घर में जब मेरी सहेली जाके बोली कि आपका बेटा बेटा नहीं है, बेटी है, बॉम्बे में साड़ी पहनता है, तो वो ताती में जो इधर कन्फ्यूजन है वो सेम कन्फ्यूजन उधर फैमिली में भी क्रिएट हो गया। तो बाद में मेरी माँ समझने लगी कि मेरे बेटे को शादी कराऊँ तो ठीक हो जाएगा, जैसे कि कुछ दवा है। मुश्किल होती है घर में ये बोलने के लिए कि मैं एक होमोसेक्सुअल हूँ या मैं एक हिजड़ा हूँ, क्योंकि हमारे जो घर वाले हैं वो समाज से जुड़े हुए होते हैं, तो उन्हें भी समाज का सामना करना पड़ता है। तो बहुत बार इन सब बातों को ध्यान रख कर ये करना पड़ता है, पर कभी कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि हम किसी की सोचते नहीं हैं और हमें एक्सीडेंटली या हमें तुरंत वहाँ का वहीं बताना पड़ता है कि मैं क्या हूँ और मेरी सेक्सुअलिटी क्या है, क्योंकि ये ज़्यादा करके टीजी लोगों को बहुत फेस करना पड़ता है कि उन्हें जाकर डायरेक्टली बताना पड़ता है कि मैं खिजड़ा हूँ और मैं तुम्हारे साथ घर में नहीं रह सकता। मतलब तुम आदमी हो और औरत हो, कहाँ से आए हो तुम, इतने दिन कहाँ थे, अचानक तुम बड़े हो दिखते। हमने कभी आज तक कोई ऐसा छोटा हिजड़ा नहीं देखा जो सीनियर केजी में जा रहा है, बैग लेके स्कूल में जा रहा है, या कॉलेज में कोई हिजड़ा जा रहा है 2 चोटी डाल के ना, ऐसा कोई हिजड़ा देखा नहीं। आप डायरेक्ट सडनली कैसे आ जाते हो? I'm gay. Actually, that's not a proper description of me. It's an English word borrowed from the West. But then, I don't have a term in an Indian language. The transgenders, the drag queens, the eunuchs, they all have an Indian term, an Indian name. But I have none. No wonder being gay is still seen as a Western construct. Irony is that for people like myself, growing up in Bombay, from a very well-to-do South Bombay existence, being gay, very often the people we would have sex with were the people who we talked about as being the non-South Bombay, being the suburbanites, being the lower economic strata. And so when it's come to the act of sex itself, there has definitely been a strong mingling of the classes. When it comes to socialization and a gay subculture, then it's a very different story, because like tends to hang around with like. It's sad that, you know, we would always call a minority person controversial. Today, if I'm from a minority community and I come out and shout, somebody will say I'm controversial, but I'm not. I'm just asking for my rights. I'm a writer, designer, filmmaker by choice. But I'm an activist, not by choice. I'm forced to speak out because of a need within myself to claim some dignity for myself, for people like me, to tell everyone, the world, that I'm normal. Section was brought in by the British, and it's got a very interesting linguistic twist to it. It says any person who has voluntarily has carnal intercourse.
against the order of nature with a man, woman or an animal shall be punishable with imprisonment of life or 10 years. But the interesting is, what is the meaning of carnal intercourse against the order of nature? And that was introduced by the British, because the British felt that sex should only be had for begetting children. There is no question of having sex for pleasure. Section 377 is mainly used to harass people. If it can be read down, then people would be more confident in coming out and in accessing the services, which they are not at present. According to me, Section 377 should be thrown out. The law, Section 377 criminalizes gay, lesbian and transgender people. But it's a society that ridicules, stigmatizes, shuns, makes us feel ashamed, make us feel like perverts. ठीक है, मैं करंट 2008 की बात बोल रही हूँ। हम लोग बहुत तकलीफ में हैं। आज मुझे खुद को यहाँ पे शर्म आ रही है कि मैं यहाँ पे खड़ी होके मेरे लोगों के बारे में बोल रही हूँ। मैं हर 2 दिन में हमारा आउटरीच वर्कर किसी न किसी पुलिस स्टेशन जाता है, 1200 रुपए फाइन भर के आता है। मुझे भी पता है बाबू, भीख मांगना गुनाह है। इंडियन लॉ कहता है कि बेगिंग इज अ क्राइम। आई नो दैट बेगिंग इज क्राइम, बट आई डोंट हैव अ जॉब। मेरे पास जॉब नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं, तो मैं भीख ही मांगूंगी। पुलिस स्टेशन में जाते हमको इतना गंदे तरीके से देखा जाता है। क्या कितना करती है, धंधा करती है, क्या करती है, इधर बैठ चल गाना गा के दिखा, तेरे असली है क्या नकली है, अरे तेरे को दाढ़ी नहीं आती, तू दाढ़ी करके आई। हमारे साथ मजाक होता है। मुझे वो पकड़ देता है कि चल कपड़े निकाल, मेल लॉकअप में चल। मेल लॉकअप में जाती हूँ, गर्दुल्ले वहां पड़े रहते हैं। रात को तो वो मुझे नोचेंगे ही नोचेंगे। अगर रात को पकड़ा है, मुझे मेंटली तैयारी करनी है। चल भाई, अभी तेरे हाथ आई हूँ, तू जो करना है कर ले। अपने नयन से नीर बहाए, अपनी जमुना खुद आप ही बनावे। But when will this violence, this cruelty end? The Delhi High Court has heard both sides of the case over 12 days of one of the most astonishing human rights trials in India. They'll be coming out with the verdict soon. Will it be for or will it be against reading down Section 377? But of course, I'm hopeful that my partner and I can live without fear, that we can have the same rights, the same dignity as anyone else. I hope I can say I love another man without fear one day. यादों की राह पर खुशियों की छाँव है, यादों की राह पर खुशियों की छाँव है। निकले थे अकेले, अब संग कितने पाँव है। सपने हैं, अपने हैं, और तू भी मेरे साथ है। निकले थे अकेले, अब संग कितने पाँव है। I can be arrested for making this film under Section 377. I can be imprisoned for life. I'm a criminal because I dare to love.